Today's topic is Liang-Barsky लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। हमने पहले भी जैसे डिस्कस किया था कोहन-सदरलैंड एल्गोरिथम, ठीक है, फॉर लाइन क्लिपिंग। बट कोहन-सदरलैंड के साथ प्रॉब्लम क्या था, ईच एंड एवरी टाइम वी हैव टू कैलकुलेट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइन विद द विंडो, तो वहां पे हमारा थोड़ा सा टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा था। तो यहाँ पर क्या है, आपके पास बेनिफिट है, जो भी हमारी इक्वेशन है वो वर्क करती है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन पे। मीन्स पैरामीट्रिक इक्वेशन वॉज कैलकुलेटेड बाय लियांग-बार्स्की एज he assumed that if this is a line segment with coordinates x1 y1 and x2 y2, and for this line segment if unit time is required to read the whole line, means if I start from 0 time here and reach the second end point of the line at t is equals to 1, then we can easily calculate this point if we know the value of t. Are you getting my point? Means अगर यहाँ पे टाइम 0 है और यहाँ पे टाइम 1 है और हमें इस लाइन पे टाइम पता है, लेट अस अस्यूम दिस टाइम इज 3/4, वी कैन इजीली कैलकुलेट द coordinates of this point. So keeping this concept in mind, he developed the parametric equation, which is equal to x is equals to x1 plus u dot dx. This is u is basically t, जो हमने t that is time consider किया था वो यहाँ पे u लिया गया इक्वेशन, तो u dot dx. Similarly, y is equals to y1 plus u dot dy, where dx and dy are x2 minus x1 and y2 minus y, and u lies between 0 to 1. Now, for a given point, we know these are the 4 inequalities. That is, x should lie between xw min and xw max, and y should lie between yw min and yw max. Now replace x and y with these values. That is this equation A. When we replace the x and y with equation A, we get this kind of equation. Now we are having these 4 inequalities. Inequality 1, inequality 2, 3 and 4. So we have to rearrange these inequality in the form pk dot u less than equal to qk, where k is equals to 1, 2, 3 and 4. So when we will rearrange these inequalities, we will get these values. मैं आपको एक इनइक्वालिटी चेंज करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से किया है हमने. सो लेट अस कंसिडर दिस इनइक्वालिटी, एक्स डब्ल्यू min इज लेस देन इक्वल्स टू x1 प्लस यू डॉट dx. हमें लेकर किस फॉर्म में आना है, pk डॉट यू इज लेस देन इक्वल टू qk. मीन्स u के साथ जो टर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, pk, और रेस्ट आपका क्या बन जाएगा, q. तो x1 को हम इधर ले आते हैं, तो आपकी इक्वेशन क्या आ गई, u डॉट dx x1 माइनस xw min, और यहाँ पे आ गया माइनस u डॉट dx. ठीक है, तो x1 माइनस xw min आपका क्या बन गया, q1, और यहाँ पे आपका क्या है, u डॉट pk की फॉर्म में होना चाहिए. pk की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस dx डॉट u.
सो दिस इज योर P1. तो इक्वेशन क्या हो गई, P1 डॉट यू इज लेस देन इक्वल टू Q1. Q1 की वैल्यू आपकी ये आ गई और P1 की वैल्यू आपकी माइनस dx हो गई. ये देख सकते हैं हम यहाँ पे P1 कितना गिवन है माइनस dx, Q1 गिवन है x1 माइनस xw. इसी तरीके से हम बाकी रिमेनिंग इनइक्वालिटीज को भी हम चेंज कर लेंगे इस फॉर्म. नेक्स्ट इज द एल्गोरिथम. Liang-Barsky says if the value of P is equal to 0 and value of Q is negative for any k means k is either 1, 2, 3 or 4, then eliminate the line and stop the process. Otherwise, proceed to the next. Now, second step says for every value of k where P is less than 0 means where P is negative, calculate R and value of R is equal to Q divided by P. And here you have to make a set U1 which is the maximum of one value is fixed, that is 0, and other values are values of R जो हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे with the help of Q divided by P. Next, step 3. For all values of k where P is positive, calculate R Q by P and make a set U2 which is the minimum of one value is fixed, that is 1, and second is R जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया. Next, step 4. If U1 is greater than U2, जो हमने अभी सेट बनाए हैं U1 और U2, उनमें से वैल्यू निकल के आएगी कुछ, यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ से मिनिमम वैल्यू. तो जो भी वैल्यू है उन्हें कंपेयर किया जाएगा. नाउ इफ U1 एंड U2 में अगर U1 बड़ा है तो लाइन एलिमिनेट हो जाएगी. अदरवाइज U1 और U2 को हम इक्वेशन A में पुट करेंगे और एंड पॉइंट्स निकाल लेंगे क्लिप्ड लाइन. सो दिस इज द एल्गोरिथम. नाउ एडवांटेज क्या है इस एल्गोरिथम का, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि हमने यहाँ पर इंटरसेक्शन के रिगार्डिंग जितनी भी कैलकुलेशंस थी उन्हें रिड्यूस कर दी. जिस तरीके से कोहन-सदरलैंड में हर बार हम इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट कर रहे थे अपनी विंडो के साथ, यहाँ पर हमने लास्ट में जब फाइनल हमारी U1 U2 की वैल्यू आ गई तब जाके क्लिपिंग लाइन के पॉइंट्स निकाले. सो इट विल सेव अवर टाइम. Now we will discuss the numerical. So it is given that XW is 1, YW is 2, XW is 9 and YW is 8. And given line coordinates are 6, 6 and 8, 9. तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया विंडो को. P is given 6, 6 and Q is given 8, 9. As per Liang-Barsky, we have to calculate all the P and Q values. P और Q values calculate कर लेंगे हम सारी यहाँ पे. So for calculating P and Q values, formulas पे आ जाते हैं. P1, P2, P3, P4 इस तरीके से हमने सारे formulas लिख लिए. अब values put करते हैं. So for P1, x2 minus x1 and साथ में क्या है आपका माइनस साइन. तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? For P1 it is minus x2 minus x1. Result is x2 is given. This is y2, x2 y2. This is x1 y1. Means x1 is 6, y1 is 6, x2 is 8 and y2 is 9. वैल्यूज पुट करते चले जाएंगे अब हम. दैट इज माइनस 6 minus 6, x2 is 8, 8 minus 6 minus 2. तो रिजल्ट क्या आ गया हमारा -2. P2 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी 8 minus 6, दैट इज रिजल्ट इज 2. फॉर P3 माइनस in bracket
y2 minus y1, that is 9 minus 6, that is minus 3. And for P4 it is 3. Similarly, Q1, Q2, Q3 and Q4 are calculated. ठीक है, Q1, Q2, Q3, Q4 की भी वैल्यूज आ गई. अब R की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं. R सिंपली क्या है आपका Q बाय P. तो यहाँ पे R1 आपका क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय -2, तो माइनस 5/2. R2 क्या आ जाएगा 3/2. R3 हो जाएगा आपका -4/3. R4 हो जाएगा 2/3. अब हम वापस आ जाते हैं अपने एल्गोरिथम पे. एल्गोरिथम क्या कह रहा था कि जहां कहीं भी पहला पॉइंट क्या था, वेयर एवर P इज 0 एंड Q इज नेगेटिव. अब P 0 कहीं पे भी नहीं है हमारा. अगर P 0 होता, इन चारों में से कोई एक P भी 0 हो जाता, हम लाइन वहीं डिस्कार्ड कर देते, प्रोसेस को स्टॉप कर देते. बट यहाँ पे कोई भी P 0 नहीं, तो हम आगे मूव ऑन करें. अब सेकंड पॉइंट क्या कह रहा था, फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ K, मीन्स ये जो 4 वैल्यूज हैं K की, इनमें जहां जहां P नेगेटिव है, P इज लेस देन 0. P नेगेटिव कहां पर है, P1 इज नेगेटिव एंड P3 इज नेगेटिव. ठीक है, ये दोनों आपके नेगेटिव आए हैं P वैल्यूज, बिकॉज हियर इट इज -2 एंड हियर इट इज -3. तो यहां पर हम क्या करेंगे, सेट बनाएंगे U1 एंड वैल्यू ऑफ U1 इज मैक्सिमम ऑफ, एक वैल्यू वहां पे क्या थी 0 एंड वैल्यू ऑफ R. तो P1 के रेस्पेक्ट में R1 है, R1 की वैल्यू क्या है -5/2, यहाँ पे लिख लेंगे -5/2. सिमिलरली P3 के रेस्पेक्ट में R की वैल्यू क्या है -4/3, आ जाएगा -4/3. ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे हमारा लिखा क्या है मैक्सिमम, तो सेट हमारा ये बन गया. इस सेट में मैक्सिमम वैल्यू क्या है 0, तो U1 की वैल्यू कितनी आ गई 0. नाउ फॉर U2, थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं एल्गोरिथम के. उसमें क्या लिखा है कि फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ K वेयर P इज पॉजिटिव, P इज ग्रेटर देन 0. तो पॉजिटिव कहाँ पे है P, यहाँ पे और यहाँ पे, दैट इज P2 एंड P4. तो इनके रेस्पेक्ट में R2 और R4 है आपका. सेट क्या जनरेट हो रहा है U2, वैल्यू क्या थी ऑलरेडी यहाँ पे 1, और वैल्यूज यहाँ पे क्या है 3/2 एंड 2/3, 3/2, 2/3. अब यहां से आपको क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम वैल्यू. मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट क्या करेंगे, तो क्या आ जाएगी 2/3. ये मिनिमम है. थर्ड पॉइंट तक हो गया. नेक्स्ट स्टेप 4. स्टेप 4 क्या कह रहा था, यू हैव टू कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन U1 एंड U2. आइदर U1 इफ U1 इज ग्रेटर देन U2. कंडीशन चेक कर लेते हैं. U1 क्या है 0, U2 है 2/3. कंडीशन फॉल्स हो गई. इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द क्लिपिंग पॉइंट्स ऑफ द गिवन लाइन. क्लिपिंग पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ U1 एंड U2 1 by 1 इन द इक्वेशन A. अब इक्वेशन A क्या थी हमारी, वो लिख लेते हैं. दिस इज योर इक्वेशन A. अब यहां पर पहले हम U1 की वैल्यू रखते हैं और उसके बाद U2 की. सो फॉर U1 कितना है हमारा, हमने अभी कैलकुलेट किया है. U1 इज 0, सो U1 को हम पुट करेंगे 0. X और Y कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आपका 0 0 हो जाएगा, तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी. क्या बचा, X इक्वल टू X1 एंड Y इज इक्वल टू Y1, which means 6 and 6. तो आपका पहला पॉइंट क्या आ गया 6,6. नाउ सिमिलरली फॉर U2 की वैल्यू आपकी क्या आई है 2/3. अब 2/3 वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या है x1 प्लस 2/3 डॉट
dx, वैल्यू सॉल्व करेंगे। x1 इज 6 प्लस 2/3, dx आपका कितना आ गया 2, दैट इज, अब हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, सॉल्व कर लिया, दैट इज 22/3। सिमिलरली फॉर y we will calculate, that is y1 plus 2/3 dot dy, y1 क्या है 6 plus 2/3, dy is 3, क्या गया आंसर 8। तो सेकेंड पॉइंट हमें जो मिल गया दैट इज 22/3, 8। सो आपके पॉइंट्स क्या जनरेट होके आ गए आफ्टर कैलकुलेटिंग दी वैल्यूज। जब u1 रखा तो फर्स्ट पॉइंट आपका आया 6,6 और सेकेंड पॉइंट आपका क्या आया 22/3, 8। कंडीशन कैसे चेक होगी? यू हैव टू चेक x and y that these value should lie between xw min ठीक है, वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। दिस इज 1, दिस इज 9, दिस इज 2 एंड 8। वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। 6,6 अगर चेक करें तो x इज 6, y इज 6, दोनों लाइक कर रहे हैं, करेक्ट है। दूसरा अगर हम पुट करें 22/3, 8, 22/3 इज समवॉट 7.3, 7.3 x की वैल्यू है तो वो 1 और 9 के बीच लाई कर रही है। नेक्स्ट इज 8 फॉर y, 2 और 8 के बीच में लाई कर रही है। इस तरीके से हमने अपने कोऑर्डिनेट्स निकाले। So after clipping, the points are these two. That's all.